اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. کلاس 6 سبجیکٹ انگلش. ٹاپک ہے ایکسرسائز. آج میں ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز پارٹ فرسٹ. جو لیسن ہم نے کل کمپلیٹ کی ہے, اس لیسن کا نام ہے دا کشمیری شال. دا کشمیری شال, اس کی ہمیں آج ایکسرسائز کرنی ہے پارٹ فرسٹ. Dear students, question number first ہے, what do you understand by the تعلیم? Who writes it? ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ تعلیم کس کو کہتے ہیں. What do you understand by the تعلیم? Who writes it? کشمیری شال جو لیسن ہم نے پڑھی ہے, وہاں پر جو شال کے جو کشمیری شال ہے, اس کے بارے میں وہاں پر ہمیں انفارمیشن ملی ہے. لیکن شال بنانے میں ایک تعلیم ہوتی ہے. شال بنانے میں بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. اور یہاں پر ہمیں کوسچن بتا رہا ہے, واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی تعلیم؟ اس تعلیم آپ کیا سمجھ رہی اس تعلیم کے بارے میں. اینڈ ہو رائٹس, اور کس نے لکھی ہے تعلیم. اس کا آنسر ہے شالز سائن از ایکچولی شالز الفابیٹ. جو ویورز ہوتے ہیں, جو شال بنانے والے ہوتے ہیں, وہ اپنے سامنے جب وہ شال پر کام کرتے ہیں, لوم پر کام کرتے ہیں, شال بناتے بناتے جب وہ کام کرتے ہیں, اس وقت وہ شال سائنس سامنے رکھتے ہیں. ان کو بولتے ہیں, ان کو شالز الفابیٹ بھی بولتے ہیں. اٹ از لائک اے ٹرانسکرپشن. یہ ایک ٹرانسکرپشن ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے سامنے وہ شال سائنس رکھتے ہیں, یا وی کین سے شالز الفابیٹ وہ رکھتے ہیں اپنے سامنے, اور ان کا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ کو کون سا کلر اٹھانا ہے وہی لگانا ہے. مگر جب ان کے سامنے وہ شالز الفابیٹ ہوتے ہیں, اٹ از لائک ایک ٹرانسکرپشن ہوتا ہے. جب جو ماسٹر ان کو ٹرانسکرپٹ کرتا ہے, جو ان کو بتاتا ہے کہ کون سا کلر اٹھانا ہے, کون سا دھاگا اٹھانا ہے, وہ ویورز جو ہوتے ہیں شال بنانے پر وہ وہی دھاگا اٹھاتے ہیں یا وہی کلر اٹھاتے ہیں. دس از کیپٹ بائی ویورز while weaving shawls. یہ جو ویورز ہوتے ہیں وہ اس ٹرانسکرپشن کو, ان شالز الفابیٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. This is kept by viewers. Viewers اپنے سامنے رکھتے ہیں while weaving shawls, جس وقت وہ شال پر کام کرتے ہیں. This transcription is called تعلیم. یہی ٹرانسکرپشن جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تعلیم. It is the تعلیم expert who writes it. جو تعلیم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, جو شال بنانے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہی لکھتا ہے یہ تعلیم. جو تعلیم ویورز کے سامنے ہوتا ہے, یہ تعلیم ایکسپرٹ ہی لکھتا ہے. اب کلیئر ہوا ہے کہ تعلیم کس کو بولتے ہیں اور کس نے لکھی ہے یہ تعلیم. کلیئر. ناؤ کوسچن نمبر سیکنڈ, how is pashmina obtained? How is it different from other types of wool? How is pashmina? پشمینہ ہم کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا وول ہوتا ہے, ایک سپیریئر وول ہوتا ہے. How is it different from other types of wools? دوسرے وولز کے نسبت سے زیادہ کیوں بہتر ہے, how it is different, کیوں مختلف ہے. باقی وولز ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کیوں مختلف ہوتا ہے یہ پشمینہ سپیریئر کوالٹی کا وول ہوتا ہے. اس کا جو ہم شال بناتے ہیں وہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتا ہے. اس کا آنسر ہے پشمینہ از obtained from a wild goat called kelgoat. ہم نے لیسن میں پڑھا ہے جو یہ پشمینہ ہے یہ ہم وائلڈ گوٹ, جس کو ہم بولتے ہیں کیل گوٹ سے حاصل کرتے ہیں. لیکن جو یہ کیل گوٹ ہے یہ ہائی آلٹیٹیوڈز پر واقع ہو, یہ وہاں پر جو ہائی آلٹیٹیوڈز ہوتے ہیں وہاں پر ہی ان کا رہن سہن ہوتا ہے کیل گوٹ کا. It is shot by these goats in spring season. جب سپرنگ سیزن آتا ہے یہ خود بخود اپنے آپ کو شڈ کرتے ہیں, ان کو ریمو کرتے ہیں. جو اس کے بال ہوتے ہیں, کیل گوٹ کے جو بال ہوتے ہیں, جو وول ہوتا ہے ان کے جسم پر, کیل گوٹ کے جسم پر, یہ ان کو ریمو, جب سپرنگ سیزن آتا ہے, جب موسم باہر آتا ہے, یہ ان کو ریمو کرتا ہے. اس بال کو وہ ریمو کرتا ہے بائی جو اپنے آپ کو رگڑ دیتے ہیں بشز کے ساتھ, جاڑی کے ساتھ. پھر وہاں پر نومیڈز جاتے ہیں, وہ ان بالوں کو اٹھاتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں کشمیری ویورز کو. پھر وہ اس کو شال بناتے ہیں. جب یہ سپرنگ سیزن میں شڈ اپ کرتے ہیں, اٹ از شڈ بائی دیز گوٹس ان سپرنگ سیزن, موسم باہر میں یہ اپنے جسم کو جھاڑیوں کے ساتھ رگڑتے ہیں, بشز کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ رگڑتے ہیں. پھر وہ ریمو ہوتا ہے ان کے باڈی سے.
फिर जहाँ वहां पर नोमैड्स होते हैं वो इन बालों को उठाते हैं, फिर वहां पर फिर कश्मीरी वीवर्स जो कश्मीरी शाल बनाने वाले थे उनको सप्लाई करते हैं। फिर वहां पर कश्मीरी वीवर्स क्या करते हैं, फाइन वूल इज सॉर्ट आउट, फिर वहां पर जो अच्छा वूल होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, अच्छा वूल को सॉर्ट आउट करते हैं। जो साफ वूल वो सॉर्ट आउट करते हैं, इट इज कॉल्ड पश्मीना, उसको बोलते हैं पश्मीना। वाइल एज रफ वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंफीरियर शॉल्स, और वहां पर दूसरा किस्म भी वूल निकलता है लेकिन वो इंफीरियर होता है, वो ज्यादा क्वालिटी का नहीं होता है, वो इंफीरियर शॉल जो लो क्वालिटी का वूल होता है, जो इसका शॉल बनाते हैं फिर वो होते हैं इंफीरियर शॉल्स। लेकिन जो सॉफ्ट वूल अलग किया जाता है उससे हम पश्मीना शॉल बनाते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 3. How did European came to know about the Kashmiri shawl? यूरोपियंस ने, जो यूरोप के लोग हैं, उन्होंने कैसे जाना है कश्मीरी शॉल के मुतलिक? इसका आंसर है फ्रांसिस बर्नियर was the first European who visited Kashmir in 1664. He wrote about the softness and delicacy of the Kashmiri shawl. Francis Bernier was the first European who visited Kashmir in 1664. वो यूरोपियन वालों को कैसे पता चला? यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांसिस बर्नियर हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन। जो फ्रांसिस बर्नियर था वो पहली बार, वो यूरोपियन का था फ्रांसिस बर्नियर, वो पहली बार कश्मीर आया। कब? 1664 में वो कश्मीर में आया। He wrote about the softness and delicacy of the Kashmiri shawl. उसने लिखा है अपनी बुक में, उसने लिखा है he wrote about the softness, जो ये कश्मीरी शाल है वो कितना सॉफ्ट है और कितना डिलिकेट है, एंड delicacy of the Kashmir, उसने लिखा है कश्मीरी शाल उसकी सॉफ्टनेस के मुताबिक और इसकी डिलिकेसी के मुताबिक लिखा है फ्रांसिस बर्नियर ने कश्मीरी शाल के मुताबिक। इस तरीके से यूरोप वालों को पता चला है कश्मीरी शाल के मुताबिक। Now question number 4. What is the other name for the designer of the Kashmiri shawl? जो ये कश्मीरी शाल, what is the other name for the designer of the Kashmiri shawl? जो कश्मीरी शाल का डिजाइनर होता है, उसका डिजाइन देने वाला होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? हमने किताब बुक में पढ़ा है, उसका नाम है नकाश। इसका आंसर है द अदर नेम फॉर द डिजाइनर इज नकाश। उसको हम यहाँ पर बोलते हैं नकाश। जो इसको नक्श निगारी करता है शाल को, उसको बोलते हैं नकाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हु ब्रॉट द शाल टू कश्मीर? हाउ डू यू नो? इस कश्मीर में किसने, यहाँ की शाल इंडस्ट्री किसने यहाँ पर लाई कश्मीर में? इस शाल का कंसेप्ट किसने लाया है इस कश्मीर में? इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है इट वाज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन हु ब्रॉट शाल टू कश्मीर। ये उस वक्त का बादशाह था जिसका नाम है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। उस वक्त कश्मीर के लोग उसको बादशाह के नाम से पुकारते हैं। इट वाज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन हु ब्रॉट शाल टू कश्मीर। ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन था, उसी ने शाल का कंसेप्ट कश्मीर में लाया। दिस किंग इज कॉल्ड हाईली स्किल्ड वीवर नाजी बेग फ्रॉम तुर्किस्तान। इस किंग ने, इस बादशाह ने, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने एक हाईली स्किल्ड वीवर, एक बहुत ही जानने वाला और हुनरमंद वीवर, जो लोम बनाने वाला, जो शाल बनाने वाला, उसने उसको बुलाया। इस बादशाह ने उसको बुलाया। इसका नाम था नागिस बेग था उसका। इस बादशाह ने, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इस नागिस बेग को बुलाया। कहां से? तुर्किस्तान से बुलाया। तो बिल्ड अ लोम फॉर वीविंग शॉल्स। उसने उसको बोला कि मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया कश्मीर में कि आप यहाँ पर लोम बनाइए। लोम जो होता है, मैंने बताया जब हमने लेसन पढ़ी है उसमें मैंने बताया कि लोम पर एक कश्मीरी शाल हम बनाते हैं। तो बिल्ड ए लोम फॉर वीविंग शॉल्स। आप लोम को बनाए, फिर आप यहाँ के लोगों को सिखाए कि शाल किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि जो कश्मीर में शाल का कंसेप्ट सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ पर लाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मुझे बोर्ड पर मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने डेयरी पर ही लिखा है, और व्हाट्सएप थ्रू के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मैं ये इसका फोटो मैं आपको भेजूंगा। हाउ इज द कश्मीरी शाल डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन? कश्मीरी शाल क्यों मुख्तलिफ है यूरोप के मुकाबले में? द यूरोपियन शाल्स आर मेड इन यूरोपियन ट्रेडिशन। जो यूरोप का शाल होता है वो यूरोपीय रिवायती के मुताबिक बनाते हैं। वो दे आर ट्रिमड विच वीकन द शाल। वो इस शाल को ट्रिम करते हैं, वो काटते हैं, छोटे छोटे पीसों में वो बनाते हैं। वो छोटे छोटे पीस होते हैं विच वीकन द शाल। फिर वो इस तरीके से वहां पर शाल कमजोर होता है,
वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। Thus its beauty was marred, और इसकी जो ब्यूटी, जब पीसू में शाल होता है इसकी जो ब्यूटी वो मैरिड होती है, वो अच्छी नहीं रहती है, खराब हो जाती है इसकी ब्यूटी। यूरोपियन शॉल्स वर वूवन इन सेवरल पीसेस, जो मैंने पहले ही कहा कि जो यूरोपियन शॉल्स होते हैं वो सेवरल पीसेस में वो बनाते हैं, फिर उनको सिव करते हैं, सिलाई करते हैं, फिर वो बड़ा शाल बनाते हैं। They had to be sewn together, फिर इन पीसेस को सिवन करता है, सिलाई करते हैं, फिर बड़ा पीस बनाते हैं। कश्मीरी शॉल्स वर मेड इन वन, लेकिन जो कश्मीर का शॉल होता है वो वन पीस में होता है। दिस वाज द डिफरेंट बिटवीन द यूरोपियन शॉल एंड द कश्मीरी शॉल। यूरोपियन शॉल वाज मेड इन सेवरल पीसेस व्हाइल एज कश्मीरी शॉल इज मेड इन ओनली वन पीस। दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी यहाँ पर ये मैंने डेयरी पर लिखा है। व्हाई आर शॉल्स सो पॉपुलर, शॉल्स क्यों ज्यादा मशहूर है, कश्मीरी शॉल्स क्यों ज्यादा मशहूर है। शॉल्स बिकेम पॉपुलर इन फ्रांस आफ्टर नेपोलियन प्रेजेंटेड रियर शॉल टू इम्प्रेस जोस्पैन। शॉल्स इस लिहाज से मशहूर हुई है, कश्मीरी शॉल इस लिहाज से मशहूर हुई है खासकर फ्रांस में, व्हेन जब नेपोलियन ने तोहफे के तौर पर इम्प्रेस जोस्पैन को शॉल दिया। जब कश्मीरी शॉल इस लिहाज से मशहूर हुई है दुनिया भर में, जब नेपोलियन ने तोहफे के तौर पर इम्प्रेस जोस्पैन को कश्मीरी शॉल अता किया, कश्मीरी शॉल तोहफे के तौर पर दिया। द ब्रिटिश ऑल्सो डेवलप्ड इंटरेस्ट इन द कश्मीरी गुड्स, हालांकि जो ब्रिटिश वाले हैं वो भी इंटरेस्ट रखते हैं कश्मीरी गुड्स में। Kashmiri shawls are used as wedding gifts and form an important item in the bride's trousseau. जो कश्मीरी शॉल्स होते हैं ये खासकर इस्तेमाल होते हैं वेडिंग गिफ्ट्स में, खासकर तोहफे के गिफ्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। एंड फॉर्म इम्पोर्टेंट आइटम इन द ब्राइड्स ट्रोसू, और यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जब शादी होती है और दुल्हन के लिए जरूरी लाना ही पड़ता है, इसलिए it becomes an important item in the bride's trousseau. दुल्हन के लिए जो कपड़े हम लाते हैं, इन कपड़ों में ये शाल भी अहम होता है, इसलिए ये बन गए important item in the bride's trousseau. Dear students, I hope you can understand all these 7 questions in this offline class, and accordingly you write down these questions on your English exercise notebook. Thanks.